लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन 2:1 और द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन 1:8 बाय मास। If we talk about isotopes जो है वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, so he did not mention anything about isotopes. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। आज के सेशन में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का उमंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज लेक्चर 1, तो जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसे ही सारे सेशंस को टिल द एंड जरूर देखना। अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ अ डोज ऑफ motivation, which is positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. So I hope all of you definitely agree with law of attraction also. If you think positive, you can attract positive things rather than just thinking about negative things. ठीक है? Apart from that, you can connect with me on Instagram also. My Instagram handle is Nikita_08SAHU, जहाँ पे भी I put up academic content, shorts, funny reels, और वेदांतु का भी एक separate 9th और 10th का Instagram page है. You can definitely follow us there also. Okay, let's start about the initial thought about different philosophers and scientists. So Maharshi Kannada, he is actually the one who actually gave certain postulates. उन्होंने बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर को अगर आप डिवाइड करोगे, सो दिस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच ही कॉल्ड एज matter, he called as padarth, and if you keep dividing this matter, you will get smaller and smaller particles. ठीक है, तो ये महर्षि कन्नड़ की फिलोसफी थी. Apart from that, Parmanu, he actually used the term for the smallest particles beyond which further division is not possible. मतलब उन्होंने ये बोला था कि मैटर को जब आप डिवाइड करोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, एक ऐसा पॉइंट आएगा, he actually used the word परमाणु, जिससे further division possible नहीं है. ठीक है, so here you see matter is dividing into smaller particles, then into smaller particles, then यहाँ पे एक ऐसा end point आ जाएगा जिससे further division of particles is not possible. ठीक है, that was told by Maharshi Kannada. Then came Leucippus and Democritus. उन्होंने बोला था on dividing matter a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms. तो basically concept was approximately same, but the words the different philosophers और scientists जो उन्होंने use किया था वो different था. Leucippus and Democritus ने ऐसा बोला था कि जब आप मैटर को डिवाइड करोगे एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब उसके बाद फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो मैटर को हम स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं and he called these smaller particles as atoms. But हम structure of atom में पढ़ेंगे कि atom को आप further divide कर सकते हो into electrons, protons and neutrons. ठीक है, तो ये basically theory थी. Now यहाँ पे दो बहुत ही ज़्यादा important law हम पढ़ने वाले हैं इस particular chapter पे. वो है आपका law of chemical combination. So we have law of chemical combination and law of constant proportion. ठीक है, so in the law of chemical combination, first of all आपका है law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed. मतलब कि आपका जो total mass है, ठीक है, the total mass before and after the reaction remains same. ठीक है, तो जो टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स सेम. फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ वुड, ठीक है, वुड का टुकड़ा, उसको आपने जलाया, तो जो टोटल मास है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड का, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड जो कि एशेस और स्मोक फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स सेम. नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ constant proportion. Now law of constant proportion क्या कहता है कि in the case of law of constant proportion, for example let's talk about कि the formation of water. ठीक है, let's first talk about law of constant proportion में आपका water.
ठीक है। तो हियर वट एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर, द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन 2:1 और द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन 1:8 बाय मास। ठीक है, द रेशियो विल ऑलवेज बी फिक्स, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप पानी कहीं से भी लो, वेदर फ्रॉम वेल, रिवर, पॉन्ड, ocean, the ratio of hydrogen is to oxygen by mass will always remain constant, which is 1:8. अब 1:8 कैसे आया? तो फॉर्मूला है H2O, इसका 2 ग्राम इस टू ऑक्सीजन का मास 16। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1:8। सो दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्स डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो सही हैं, कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो गलत है, व्हिच वाज रेक्टिफाइड लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टन ने बोला था, जॉन डेल्टन was the scientist, उन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच ही कॉल्ड मैटर एटम्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम्स कहते हैं। आप एटम्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, व्हिच इज रॉन्ग। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर, दे हैव सेम साइज, मास एंड कैरेक्टर। तो जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका सेम नेचर होता है, सेम साइज होता है, मास होता है और कैरेक्टर होता है। और अगर आप कंपेयर करोगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे एक्चुअली आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट साइज एंड मास। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आता है कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। सो एटम्स जो है क्रिएट भी नहीं होते या फिर नष्ट भी नहीं होते किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स। तो जो एटम्स है, जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन कैसा होता है? जब 2 या मोर देन 2 एटम्स दे एक्चुअली कंबाइन। ठीक है, तो ये जो रेशियो, जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं, दैट इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसका एक फिक्स नंबर और काइंड ऑफ एटम्स होता है। ये था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सारी चीजें सही नहीं है, देयर आर सर्टेन पोस्टुलेट्स व्हिच आर रॉन्ग। ये तो फर्स्ट वाला जो था, जो मैंने आपको बताया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटम्स। एटम्स कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ही डिड नॉट अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है? दे आर एक्चुअली एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which are having same atomic number and different मास नंबर। ठीक है, तो उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था अबाउट आइसोटोप्स। इफ वी टॉक अबाउट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो है वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। सो ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट आइसोटोप्स। एक और पॉइंट जो डेल्टन ने बोला था कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में होता है, लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करूं सो देयर इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पे, या फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो उसमें ये जो रेशियो नंबर है, होल नंबर रेशियो, वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो दिस पर्टिकुलर पोस्टुलेट वाज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है कि भाई एटम क्या है। सो मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिसे हम एटम्स कहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट इट इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कि हम एटम्स को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो एटम्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यू कैन नॉट सी इट विथ योर नेकेड आइज। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इनिशियली, अभी तो हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, but initially the certain pictures were used to symbolize element. Like for example, hydrogen के लिए it was actually made a dot and a circle and a dot. Carbon के लिए a circle वो पूरा black color का था. So this is actually the representation of certain elements which was given by John Dalton कि कुछ picture की मदद से, और you put a circle, through that way it is actually represented कि आप elements को कैसे represent कर सकते हो. But slowly जो हम अभी use करते हैं modern day symbol, तो इसमें हम basically use करते हैं symbol of elements rather than just putting a circle या फिर उसको कलर करने के लिए. Now whatever elements we use उससे हमारा टाइम बचता है, प्लस देयर इज प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि भाई अगर मुझे हाइड्रोजन का
सिंबल लिख रहा है तो मैं सिर्फ H लिखूंगी, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें दो लेटर्स हैं, तो फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल, द सेकंड लेटर हैज टू बी स्मॉल, लाइक इन द केस ऑफ हीलियम। और लिथियम की बात करूं, L हैज टू बी कैपिटल, I हैज टू बी स्मॉल, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें टू लेटर्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज हैज टू बी कैपिटल, द सेकंड लेटर ऑलवेज हैज टू बी स्मॉल, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी 118 एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट यूनिक है, राइट। देयर इज नो सच कॉमन सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर आउट हो गई। सो वी हैव हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम इज Li, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si एंड फास्फोरस P, ठीक है। सिमिलरली फॉर सल्फर we have S, chlorine Cl, argon Ar, calcium Ca, manganese Mn, nickel Ni, zinc Zn, bromine Br, krypton Kr, iodine I, barium is Ba, cobalt Co and uranium is U। यहाँ पे एक मैं चीज मेंशन कर दूं, so cobalt is having C capital O small, ठीक है। If we say carbon monoxide, ठीक है, तो इसमें C हैज टू बी कैपिटल, O आल्सो हैज टू बी कैपिटल, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। इन द केस ऑफ कोबाल्ट C हैज टू बी कैपिटल, O हैज टू बी स्मॉल, ठीक है। कुछ ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स है which have been taken from their Latin names, for example antimony is taken from stibnum, for example एक और मैं दूं सोडियम, तो सोडियम हैज सिंबल Na which is taken from the Latin word natrium, ठीक है। Then you have the next one, copper Cu, it is taken from cuprum, gold Au, aurum, iron Fe, ferrum, lead Pb, plumbum, mercury Hg, hydrogyrum, potassium K, kalium, silver Ag, argentum, sodium Na, natrium और tin Sn, stannum। तो कुछ ऐसे set of elements है which have been taken from their Latin names and hence the symbols are like this, ठीक है। So we have discussed the basic things in today's session। कुछ set of questions है NCERT questions, वो हम solve कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका question है, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacts with 6 gram of acetic acid। तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ, विच इज CH3COOH, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर 2.2 ग्राम ऑफ CO2। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं, 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट CH3COONA, ठीक है। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास बिफोर और आफ्टर रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, तो ये आपका टोटल कितना आएगा, दिस विल बी 6 प्लस 5.3 ग्राम, सो इट विल बी 11.3 ग्राम, है ना, रिएक्टेंट साइड में। अब ये प्रोडक्ट साइड का आप ऐड कर लो, कैसे, 8.2 प्लस 0.9 प्लस 2.2, सो 9 12 13 8 9 10 11, तो यहाँ पे भी आपका 11.3 ग्राम आ रहा है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों साइड 11.3 ग्राम आएगा। Hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? तो हमने ये चीज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास फिक्स्ड है, which is 1:8, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं H2O है, द रेशियो इज फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ ऑक्सीजन गैस बताना है। सो हियर आई कैन से कि जो 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन है दैट रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1/8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको कितना बताना है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे स्वॉच करके लिख देती हूँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन आपका, अगर मैं ऑपोजिट साइड लिख दे रही हूँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन आपका रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। सो हियर आपको पूछ रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 3 × 8 विच इज
24 gram of oxygen. ठीक है, so it will react with 24 gram of oxygen, and here also the ratio remains fixed. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? कौन सा postulate Dalton atomic theory का result है of law of conservation of mass? तो Dalton's atomic theory में ये mention किया गया था कि जो atoms है they can neither be created nor be destroyed. So वो in accordance है with law of conservation of mass. जैसा कि हमने discuss किया, before and after mass same रहता है, there is always rearrangement of atoms. ठीक है, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? तो law of आपका definite proportion कौन सा postulate explain करता है? ठीक है, law of constant proportion कौन से postulate Dalton का postulate explain करता है? That the relative number and kinds of atoms are equal in given compounds. तो जो आपके total number होते हैं, kind of atoms जो होते हैं वो equal होते हैं compounds में, और जब atoms combine करते हैं whole ratio में, whole number ratio में, तो compound formation होता है. ये postulate है Dalton का. ठीक है, सो ये आपका एक्चुअली होमवर्क है. मेक श्योर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दो. आई होप आज का सेशन यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा. कमेंट करके जरूर बताना. फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो. डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सी यू वेरी वेरी सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर.